Hey kids, how are you doing? Good morning everybody. Welcome to another super cool, super awesome and absolutely amazing class that we're taking on India's literally most loved bio channel called VBiotonic, because the supersonic speed that you guys are sending us love and helping us grow. So with that we come to the public demand topic of today. देखिए बच्चों, आप जो कहते हो वो हमारी सर आंखों पर. Whatever you told us yesterday when I was doing the class, you told us you want to do respiration in plants. So today I am there in front of you with the first topic of respiration in plants called glycolysis. And today's biggest surprise are the super awesome mnemonics, which I'm going to be sharing with you very soon. So don't go anywhere. Stay connected. Stay tuned. We are bringing to you glycolysis with mnemonics, and in the next 1 hour I'm going to make you James Bond of glycolysis, because we've already become James Bond of genetics. So let's start. Ta-da! This is nobody else but your favorite Vani ma'am. Thank you so much for all the love. It's only because of your love that I was joined the best teacher for 2 consecutive years by TCON, the Teachers Conclave, 2018 and 2019. Thank you so much for your constant love and support. This is the world famous Telegram group, and all your doubts, all your problems, everything gets covered in this Telegram group. So any problems you have in making strategies, any problems that you have on how to solve, what to solve, how to revise, which college is a good college, or any doubts that you have, make sure you join a Telegram group and get over all your doubts. This is a big dhamaka, big surprise and big news for all of you, because we are launching our micro courses. Now you might ask me, what exactly are micro courses? Micro courses वो कोर्स होते हैं जो बहुत छोटे कोर्स हैं. Like in 3 days I'm going to be teaching you molecular basis of genetics. In 2 days I can teach you the entire biotechnology. Yes everybody, 5 दिन में मैं आपको human reproduction करवा सकती हूँ. 4 दिन में हम plant reproduction revise कर सकते हैं. So ये micro courses है, वो topics जो आपके weak रह गए हैं, वो topics जो आपको आते नहीं हैं. You can use the code called Vani DINSA MIC for micro and get 95% off. 95% off you will get with this code. You can download the app. In the app they will tell you how to access the micro courses. Use these code and get up to 95% off. So many of you I see in our regular classes, which are absolutely mind-blowing and amazing. I hope to see you all soon there. So let's start today's super awesome lecture. But before I move on, this is the entire family of VBiotonic saying thank you so much for all your love, your support, your blessings, which are always with us, which are making us the fastest growing YouTube channel for biology in India. So let's start today's amazing class. This is the chapter which you wanted me to do. It's a very important chapter. We've already done photosynthesis, we've done biomolecules. आपने नहीं किया है, जाकर उन lectures को देखिए. Respiration is a very tough topic. It's a very tough topic, therefore it's a very important topic. Number of questions are 4. Total marks are 16. Weightage is 8%. Is that clear? 8%. So big chunk, big chunk. Let's start with respiration. And the cute bunny is saying, hello we biotonians. Let's start the class. Respiration. Organisms can be classified based on how they obtain energy. कैसे हमें एनर्जी मिलती है? हम सबको एटीपी चाहिए. हम एटीपी कैसे लेते हैं? क्या हम एटीपी सनलाइट की वजह से खुद बनाते हैं, या हम एटीपी किसी को खाकर लेते हैं? ये ग्रीन प्लांट यहाँ बनाया गया है, ड्रेसिना का प्लांट है. इट्स अ ऑटोट्रोफ बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू मेक इट्स ओन एटीपी. बट दिस क्यूट लिटिल रैबिट हियर कैन नॉट सिट इन द सन एंड मेक इट्स ओन एटीपी. इट नीड्स टू ईट गाजर और एनीथिंग एल्स एंड गेट एटीपी फ्रॉम दैट सोर्स. So autotrophs वो हुए who are able to produce their own organic molecules through photosynthesis. ये अपने आप अपना C6H12O6 बनाते हैं, उसको तोड़ते हैं, बर्न करते हैं और निकालते हैं ATP और यूज करते हैं. अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर नहीं, मतलब खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाता, किसी और को खाकर उसकी एनर्जी लेकर निर्भर रहेगा, इट्स कॉल्ड अ हेटेरोट्रोफ्स लाइक यू एंड
me. So we are all heterotrophs. Organisms who are able to make their own food are called as autotrophs. So with that, we move ahead. Now, yes. So phases of cellular respiration. हर एक सेल के पास एनर्जी को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है. एवरी सेल कैन ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस एटीपी और एनर्जी. सो एवरी सेल हैज इट. सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीडाइजेस शुगर, दैट मीन्स बर्न्स शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ oxygen. This is burnt in the presence of oxygen and you produce adenosine triphosphate in 3 to 4 main steps. Okay, step number 1 is glycolysis. Glycolysis basically एक misnomer है, गलती है, just like blue green algae. Blue green algae algae नहीं है, cyanobacteria है. So similarly glycolysis को भी मैं गलत बोलती हूँ. इसको really, ये मेरा कहना है, किसी किताब में नहीं लिखा है, पर ऐसा मुझे लगता है. अगर मैं इसको really ठीक मानूं, मैं शायद इसको ग्लूकोलाइसिस कहती. ग्लूकोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. दिखाई दे रहा है आपको? यस. लाइसिस का मतलब होता है, बच्चों कम ऑन, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. ये एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है. कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है लिखिए? इट्स अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. सो मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगी इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ pyruvate. Each pyruvate is a 3 carbon compound. So कितने pyruvate बन जाएंगे? I will have 2 molecules of 3 carbon compound. That's called as glycolysis. अब ये अलग अलग स्टेजेस हैं. आज की स्टेज में, मैं आज की क्लास में इमेजिन मैं आपको सिर्फ ये पढ़ाऊंगी. इतनी डिटेल में हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ ये पढ़ाऊंगी. इसके बाद पायरुवेट से बनेगा पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड को मैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजूंगी, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन करने वालों के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा. फाइनली मैं उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करूंगी. इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं. एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसे कहते हैं, उसमें जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये मेन सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी और एटीपी बनाएगा. यहां कुछ H+ बनकर तैयार हो जाएंगे. इन H+ को जब मैं मूव करवाऊंगी थ्रू एटीपी सिंथेटेज, तो मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, और जिसकी वजह से फाइनली ऑक्सीजन को यूज करके मैं एटीपी बना लेती हूं, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं. सो रेस्पिरेशन प्रोसेस में कैसे मैं ग्लूकोज में से एटीपी बनाती हूं, ये एक प्रोसेस है. कैसे मैं ग्लूकोज को यूज करके एटीपी बनाती हूं, इसका प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन. इसके 4 पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में मैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रही हूं. ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, इसको मैंने 2-3 कार्बन कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन किया. इसको कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस, जिसको रियली ग्लूकोलाइसिस कहना चाहिए था. फाइनली पायरुवेट से बना पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए लिंक रिएक्शन है. एसिटाइल कोए को मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में डालकर क्रेब्स साइकिल का काम किया, एटीपी बनाया. फाइनली जो बचा हुआ H+ है मेरे पास, उस H+ को मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एटीपी सिंथेटेज में डालकर फाइनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बनाया. डन. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस. फेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में आज क्या पढ़ने वाले हम? ग्लाइकोलाइसिस. ये हमने कर लिया. अब हम जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे. द नेम ग्लाइकोलाइसिस का एक और नाम EMP पाथवे भी है. दिस नेम वॉज गिवन बाय, देखिए बच्चों कितने डिटेल में कितनी सुंदर अच्छी स्लाइड्स बनी हैं. इट वॉज गिवन बाय एम्डन, मेयरहॉफ एंड थैरोनास इन द ईयर 1930. MCQ का फेवरेट क्वेश्चन है. इसको EMP पाथवे भी कहते हैं. ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन है, उससे मैंने 2 कार्बन, 2 molecules of 3 कार्बन बना लिए. So 2 molecules of pyruvate. Pyruvate is a 3 कार्बन कंपाउंड. ये साइटोप्लाज्म में होता है, इसीलिए यूनिवर्सल है. हो सकता है कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया ना हो. एक एक बात को समझो.
कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल है। भले ही वो एरोबिक हो जहां वो ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, या वो एनारोबिक हो जहां पे वो ऑक्सीजन को यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो एटीपी नहीं बना सकता, ऑक्सीजन यूज ही नहीं कर सकता, पर सबके पास साइटोप्लाज्म होगी और साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स होंगी, तो ये प्रोसेस क्या हुआ, यूनिवर्सल, एटीपी बन जाएगी, डज नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन, ये साइटोप्लाज्म में होता है। सो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ग्लूकोज से पाइरुवेट बन रहा है, एटीपी बन रही है, पाइरुवेट से एसिटाइल कोए, इसको कहेंगे लिंक रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में गया, सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल, जो H+ निकले, एटीपी सिंथेटेज के थ्रू एटीपी बनाया, क्रेब्स साइकिल में भी एटीपी बना, तो ये हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस एक लौता प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वापस आए वो ग्लाइकोलाइसिस में दोबारा एंटर कर जाएंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ कितनी डिटेल में, ये नहीं कि आपके स्कूल टीचर की तरह, बाकी टीचर्स की तरह सब कुछ एक क्लास में करवा दिया, आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस करवाऊंगी, और ये मेरा आपसे वादा है कि ऐसी क्लास आपने कभी पहले नहीं देखी होगी, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ग्लाइकोलाइसिस का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। एनर्जी इन्वेस्टमेंट का मतलब वो होता है कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया मैंने कितनी एनर्जी खर्च की, तो मैंने कितनी एनर्जी खर्च की, 2 एटीपी मैंने यूज कर लिए। पे ऑफ का मतलब है मुझे बदले में कितनी एनर्जी रिसीव हुई, मैंने कितनी एनर्जी जनरेट की। तो आपको 4 एटीपी इधर नजर आ रहे हैं और 2 NADH नजर आ रहे हैं, 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP, सो टोटल यहां कितना बन गया, 6 ATP, 6 + 4 इज इक्वल टू 10 ATP, 10 - 2 इज इक्वल टू नेट गेन ऑफ 8 ATP। इज दैट क्लियर? सो नेट कितना हुआ, यस 2 ATP, 2 NADH, yes everybody, 4 ATP form, -2 use 2 ATP, 2 NAD, 2, तो मैंने आपको बोला कि 1 NAD इज इक्वल टू 6, 1 NAD इज इक्वल टू 3, तो 2 इज इक्वल टू 6, 6 + 2 इज इक्वल टू 8, FAD इज इक्वल टू 2 ATP, NAD इज इक्वल टू 3, तो यहां पे 2 है, 1 NADH इज इक्वल टू 3, सो 2 इज इक्वल टू 6, नेट विल बी 8। समझ में आया? ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट्स 1 ग्लूकोज विच हैज गॉट 6 कार्बन्स, मैं बहुत बार समझा चुकी हूं, इनटू 2 पाइरुवेट्स ऑफ 3 कार्बन ईच। राइट, एक काम करिए, इसका स्नैपशॉट खींचिए, चलिए पहले ग्लाइकोलाइसिस के ओवरव्यू का स्नैपशॉट खींचिए जल्दी। Yes, so we convert 1 glucose with 6 carbons into 2 pyruvate with 3 carbons. ये 10 step biochemical pathway है। Net production of 2 ATP by substrate level phosphorylation. Yes, 2 ATP, 2 इससे बनेगा, 6 NADH से बनेगा, तो टोटल हो जाएगा 8, 2 NADH. So 1 I told you is equal to 3, 2 is equal to 6, 6 + 2 is equal to 8 ATP का नेट गेन होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए लेट्स कम टू द फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज का मतलब है जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूं, अभी तक मैं रिटर्न की कामना भी नहीं कर सकती, रिटर्न आएगा ही नहीं, अभी तो पहले मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। दिस फेज इज कॉल्ड द ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज। ग्लूकोज को एक्टिवेट करना है, ग्लूकोज को एक्टिवेट करने के लिए मुझे उसको एटीपी देना है। जब मैंने ग्लूकोज को एटीपी दे दिया, एटीपी लेके वो अनस्टेबल हो जाएगा और वो बीच से टूट जाएगा। 3 कार्बन एक तरफ, 3 कार्बन एक तरफ, क्योंकि मुझे पता है ग्लूकोज 6 कार्बन का बना है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी लगते हैं। ये देखिए, ये आप 6 कार्बन लगाइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, प्लीज ध्यान से सुनिए। तो यहां पे आपने एक फॉस्फेट लगा दिया और यहां पे आपने एक फॉस्फेट लगा दिया, दोनों फॉस्फेट्स उसको अनस्टेबल कर देंगे, वो बीच से टूट जाएगा। सो 2 ट्रायोज फॉस्फेट, 3 कार्बन एक फॉस्फेट एक तरफ,
3 कार्बन 1 फॉस्फेट दूसरी तरफ, वरना क्या था ये 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट, किसमें डिवाइड हो गया 3 कार्बन फॉस्फेट 3 कार्बन फॉस्फेट। अब मैंने 2 ATP लगा दिए थे, 2 ATP, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आई एडेड 2 ATPs on both the sides, it got broken from the middle, 3 carbon on all both the sides along with the phosphate. Now I get the energy extraction phase. I will get back energy. So glyceraldehyde 3 phosphate से pyruvate बनेगा. So in the second phase, this I will teach you in a detailed step by step manner. पहले मुझे ATP देना पड़ता है और बाद में मुझे ATP रिटर्न मिलता है. So can I do the 10 steps in detail? Step number 1, very important. The first step in glycolysis is the conversion of glucose into glucose 6 phosphate. देखिए आपके पास सिर्फ ग्लूकोज है, आप एक एंजाइम दे रहे हो हेक्सोकाइनेज, हेक्सो मतलब 6, काइनेज मतलब मूवमेंट, ये मूवमेंट करेगा फॉस्फेट का फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज. तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज को आपने कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. एटीपी आया, एटीपी का फॉस्फेट इसको दिया, एटीपी डीपी में कन्वर्ट हो गया. काम करने वाले एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज. एक एटीपी यूज हो गया, फॉस्फेट ग्लूकोज पे चिपक गया, ग्लूकोज बन गई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. स्टेप 1 ओवर. चलिए स्टेप 2. स्टेप 2 इज द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इज द रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को मैं आइसोमराइज कर देती हूं, जिससे उसका टूटना इजी है. किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. लिखिए, सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को लिखो प्लीज, कम ऑन लिखिए. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को मैंने आइसोमराइज कर दिया इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. एंजाइम जो कर रही है ग्लूकोज से फॉस्फेट को आइसोमरेज कर रही है, आइसोमरेज एंजाइम है, या आप इसको फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज भी कह सकते हो. ये आइसोमरेज एंजाइम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इसने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया है. अब आप थर्ड स्टेप पे देखो, आपने एक और एटीपी दे दिया, एक और एटीपी. तो आपके पास ये 6 कार्बन का फ्रुक्टोज है, 1 2 3 4 5 6, एक फॉस्फेट था, एक और एटीपी ने फॉस्फेट दे दिया. क्या आपको दिख रहा है 6 कार्बन और दोनों कोनों में फॉस्फेट लगा हुआ, ये हो जाएगा अनस्टेबल और बीच से कट जाएगा. 3 कार्बन इस तरफ, 3 कार्बन उस तरफ. समझ में आया? सो मैं इसको एक बार रिपीट करती हूं आपके लिए. सबसे पहले लिया ग्लूकोज, उसमें डाला एक फॉस्फेट, 1 ATP is used, glucose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate is converted to fructose 6 phosphate by isomerization. Give one more ATP converted into fructose 1,6 biphosphate or bisphosphate. Step 3 पे आ जाइए. Phosphofructokinase with magnesium as a cofactor. AIIMS लेवल क्वेश्चन, AIIMS लेवल का क्वेश्चन है. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, मैग्नीशियम इसका कोफैक्टर है. चेंजेस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6. 6 का मतलब है 6th कार्बन, 6th कार्बन पे एक फॉस्फेट लगा था. 1,6 मतलब फर्स्ट कार्बन पे भी अभी आप एक फॉस्फेट लगा दो. दोनों तरफ से अनस्टेबल हो गया, बीच से टूट जाएगा. एक एटीपी यूज किया आपने यहां पे फॉस्फेट डालने के लिए. ग्लूकोज पहला एटीपी यूज किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आइसोमराइज किया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. एक और एटीपी यूज किया प्लस 1 मोर
फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। स्टेप 4 पे आइए। अब एक एंजाइम आएगी, एल्डो शुगर है ये। शुगर्स दो तरह की होती है, कीटो शुगर, एल्डो शुगर। एल्डोलेज एंजाइम आएगी और स्प्लिट कर देगी फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को। यस, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक इधर फॉस्फेट और दूसरा इधर, एंड DHAP G3P DHAP ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यस, ये भी 3 कार्बन प्लस फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन प्लस फॉस्फेट, क्योंकि ये था आपका 6 कार्बन प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। तो 3 कार्बन प्लस फॉस्फेट एंड 3 कार्बन प्लस फॉस्फेट। आया समझ में? नेक्स्ट वी आर कमिंग टू स्टेप 5, द एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन, फॉस्फेट मतलब PO4, आइसोमरेज इंटर कन्वर्जन करवाएगी। आपने क्या था, 6 कार्बन प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वाला कंपाउंड, दैट मींस फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को G3P और DHAP में कन्वर्ट किया है। किसमें? तो इन दोनों, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, जो स्टेप 5 में होगा। So rapidly interconverts the molecules DHAP and G3P. Glyceraldehyde phosphate is removed or used in the next step. So आप ये देखो इसको। So आपने इसको आइसोमराइज से DHAP को G3P बनाया और उसको यूज कर लिया। ट्रायोस 3 कार्बन फॉस्फेट का आइसोमर बना दिया, DHAP को G3P और यूज कर लिया। अगला स्टेप देखो, क्या आपको 2 G3P नजर आ रहे हैं? जस्ट से यस मैम, नो मैम। क्या आपको 2 G3P नजर आ रहे हैं? क्या आप सबको 2 G3P नजर आ रहे हैं? दैट मीन्स DHAP को भी G3P में कन्वर्ट कर दिया है। साथ में लिखा हुआ है पे ऑफ, मतलब अब ATP बनना शुरू होगा। सो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेट करेगी, रिमूव करेगी H को, डिहाइड्रोजनेट, and adds a inorganic phosphate to glyceraldehyde 3 phosphate। ध्यान से देखिए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेटेज से बन गया 3 फॉस्फेट, मतलब तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट है, मतलब एक फॉस्फेट है। 3 कार्बन, तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या बन रहा है? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, मतलब पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट है और थर्ड कार्बन पे भी फॉस्फेट है। 1,3 बाइफॉस्फो, क्योंकि आपने दोनों फॉस्फेट्स को कंबाइन कर दिया। वही बात हो गई, वहां 6 कार्बन थे, दोनों कोने पे फॉस्फेट था, 3 कार्बन दोनों कोनों पे फॉस्फेट, ताकि ब्रेक डाउन हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। सो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को आपने 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया। एंजाइम कौन सी है आपकी? डिहाइड्रोजनेज, मतलब आप इनका हाइड्रोजन निकाल रहे हो। हाइड्रोजन अगर आप निकाल रहे हो तो किसी में ऐड करोगे। हाइड्रोजन कहीं पे ऐड करना रिडक्शन कहलाता है। NAD पे जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे वो रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बन जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद मतलब उसमें H ऐड हो गया, तो 1 NADH कैन गिव यू 3 ATPs। सो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपने बना दिया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, और NAD में आपने H ऐड कर दिया क्योंकि आप डिहाइड्रोजनेज कर रहे हो NADH, और NADH आपको दे देगा 3 ATP। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज आ गया। सो ये ट्रांसफर करेगा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्लिसरोड मतलब ग्लिसरेज से, काइनेज का मतलब है मूवमेंट। तो ये 1,3 बाय, अब देखो 1,3 बाइफॉस्फो है, समझो इसको, आपने इसको बना दिया 3 फॉस्फो, दोनों के एंड में ग्लिसरेट है, मतलब यहां 2 फॉस्फेट है और यहां तो सिर्फ 1 फॉस्फेट है,
तो ये बीच का एक फॉस्फेट कहां गया, ये गया डीपी के पास और वो बन गया एटीपी, इसीलिए ये पे ऑफ फेज है। यहां पे हम एटीपी बना रहे हैं। देखिए, तो पहले स्टेप में क्यों इसको पे ऑफ कहा है, पहले स्टेप में आपने डीहाइड्रोजनेज से NADH बनाया, दूसरे स्टेप में बायफॉस्फोर से आपने, और देखिए दो दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये 6 कार्बन है और ये मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन होगा, 1,3 बायफॉस्फो से 3 फॉस्फो बना, तो एक फॉस्फो बाहर निकला और क्या बन गया, एटीपी। अब आप करोगे रीशफलिंग, 3rd कार्बन पे फॉस्फेट है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसकी शफलिंग कर दो, 2nd कार्बन पे फॉस्फेट लगा दो, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, सिर्फ शफलिंग कर दो। एंजाइम phosphoglyceromutase moves the relocates shuffles the phosphate from 3rd carbon to the 2nd carbon to form 2 phosphoglycerate. How simple. तो आप पहुंच गए 2 phosphoglycerate. क्विकली रिवाइज करते, ग्लूकोज से शुरू किया, एक एटीपी यूज किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, फॉस्फेट को यहां डाला, आइसोमरेज लाए, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज बनाया, एक और एटीपी लाए, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट कर दिया, पहले कार्बन और 6 कार्बन पे लगा दिया, बीच से तोड़ दिया, ग्लिसरल डिहाइड और THAP बना, आइसोमर्स हैं, DHAP को G3P बनाया, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट बन गए, 1,3 मतलब 2 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट को बोला तुम जाओ एटीपी के पास, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, 3 मतलब 3rd कार्बन पे फॉस्फेट लगाए, शफल किया, 2nd कार्बन पे ले आए और NAD में H ऐड करवा दिया डीहाइड्रोजनेज एंजाइम से और बना दिया NADH। अब आप लाइए एक एंजाइम जिसको कहते हैं एनोलेज और पानी बाहर निकाल दीजिए। यस, एनोलेज आएगा, वाटर निकालेगा फ्रॉम 2 फॉस्फोग्लिसरेट, बन जाएगा फॉस्फिनॉल पायरुविक एसिड। अभी भी फॉस्फेट है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लॉस्ट बट फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट जब बाहर निकल जाएगा तो फाइनली बन जाएगा पायरुवेट। तो आई रिपीट, पहले आपके पास था 3 फॉस्फोग्लिसरेट, शफल किया 2 फॉस्फोग्लिसरेट, पानी निकाला इनोलेज ने, बन गया फॉस्फिनॉल पायरुवेट। तो हमने देख लिया कि स्टेप 9 में आई यूज अ एंजाइम कॉल्ड एनोलेज और मैंने पानी को बाहर निकाल दिया। सो 2 फॉस्फोग्लिसरेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉस्फिनॉल पायरुवेट। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस का एम ही ये है दैट आई हैव ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हिच इज गॉट 6 कार्बन, आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज पायरुवेट और पायरुविक एसिड। अगर मैं 6 कार्बन से 3 कार्बन बनाऊंगी तो ऑब्वियसली मुझे 2 3 कार्बन कंपाउंड मिलेंगे, 3 + 3 विल गिव यू 6। सो फॉस्फिनॉल पायरुवेट से मुझे पायरुविक एसिड पायरुवेट तो मिल जाएगा, पर उस फॉस का मैं क्या करूंगी, उस फॉस को मैं दे दूंगी डीपी को, एज यू कैन सी in step 10, राइट। पायरुवेट काइनेज नाम की एंजाइम है जो पायरुवेट को अलग कर देगी, जो फाइनली एंड प्रोडक्ट मुझे चाहिए, एंड एटीपी बना लूंगी मैं, बिकॉज दिस फॉस्फेट, द फॉस कैन गो एंड ज्वाइन टू डीपी, डीपी को फॉस मिल गया, डीपी बन गया एटीपी। सो दिस फिनिशेज द 10 steps of glycolysis which I want to summarize for you. So now I'm going to show you a video जो इस सबको summarize करेगा और मैं आपको दिखाऊंगी super awesome mnemonics याद करने का तरीका। So mnemonics number 1, very cool. Goodness gracious, Father Franklin did go by picking pumpkins टू बीच में नहीं आएगा, प्रिपेयर पाइज। दीज आर निमोनिक्स फॉर द पाथवे। सो मैंने शुरू किया ग्लूकोज से, ग्लूकोज को दिया फॉस्फेट, कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, आइसोमराइज किया इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट दिया तो 2 फॉस्फेट यूज कर लिए फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, फिर उसको मैंने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में पहले कन्वर्ट किया, फिर 2 हो गए तो 1,6 बायफॉस्फेट बन गया।
डिड से आया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जब मैं इसको तोड़ूंगी तो बनेगा G3P और DHAP, तो डिड गो DHAP, G3P से बनाया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, एक वापस ले लिया ATP बनाया तो बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, शफलिंग किया बन गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फाइनली बन गया PEP का पायरुवेट अलग किया, फॉस्फेट से दोबारा ATP बना लिया और एंड में बच गया पायरुवेट. सो goodness gracious, glucose 6 phosphate, father Franklin, fructose 6 phosphate, fructose 1,6 biphosphate, did go by dihydroxyacetone phosphate, glyceraldehyde 3 phosphate, 1,3 biphosphoglycerate, 3 phosphoglycerate picking, pumpkin, prepare pie, prepare में आ गया PEP, phosphenol pyruvate, pie से आ गया pyruvate और prepare pumpkin pie, prepare से PEP, pumpkin 2 phosphoglycerate. So this is a very simple mnemonic to tell you for the pathway of glycolysis. बड़ा मुश्किल है, चलो आगे बढ़ते हैं. And now I'm going to tell you mnemonic for enzymes. Hungry Peter Pan and the growing pink panther eat pies. Hungry पहली enzyme hexokinase, Peter Pan phosphohexose isomerase and phosphofructokinase, aldolase, triose phosphate isomerase, growling pink panther, glyceraldehyde 3 phosphate, pink phosphoglycerate kinase, panther phosphoglycerate mutase, eat pie, enolase pyruvate kinase. So with that we come to the end of it. Let me do the धमाकेदार end by showing you a video. चलिए, so मैं आपको एक बहुत ही awesome वीडियो दिखाने वाली हूं. Yes, देखिए. So let's start with glucose in this video. So हमारे पास ग्लूकोज है जो कि एक 6 कार्बन की शुगर है. We will start with 6 carbon sugar which is called glucose and we have to eventually convert it into 2 molecules of 3 carbon each known as pyruvic acid. So in glycolysis I'm going to break this eventually into 2 molecules of 3 carbon each. That is what is the main part, main agenda of today's class जो हमने डिटेल में देखा है. So 6 कार्बन ग्लूकोज को हम तोड़ना शुरू करते हैं. एक स्टेप प्रोसेस नहीं, इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस. ATP आया, एक फॉस्फेट इधर लगाया, दूसरा ATP आया, दूसरा फॉस्फेट इधर लगाया, अनस्टेबल हो गया, बीच से कट जाएगा, बीच से कटेगा इंटू DHAP एंड G3P, राइट एवरीबडी, और ATP से बन गया ADP. तो ये आ गया आपका, देखिए 6 कार्बन शुगर, और ये देखिए अनस्टेबल हो गया, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड इज कॉल्ड DHAP, दूसरा इज कॉल्ड एज G3P. इज दैट क्लियर? Yes everybody, so you can see this 3 carbon pyruvate and eventually we will convert them into 3 carbon pyruvate and 3 carbon pyruvate. अब यहाँ पे while making we just need pyruvate, I don't need the phosphate. So 1,3 biphosphoglycerate and phosphenol pyruvate से जब phosphate निकलेगा I will generate ATP और H को मैं dehydrogenate कर दूंगी so that I can get, you are right, NADH. 1 NADH is equal to 3 ATP. I make 2 NADH giving me 6 ATPs and I produce 4 ATPs. So total production is of 10 ATPs. I use 2 ATPs. So I get a total of net of 8 ATPs. I hope this is crystal clear to all of you. तो आगे बढ़ा जाए and let's look at the chart for it. Yes, चलिए. Okay. Yes. So this is the chart. This is all of the material that we've done in detail in today's class. Super amazing class. Investment phase मैंने आपको बताया, ATP use किया. Payoff phase मैंने आपको बताया where I make. So I make 10 but I made an investment of 2. So my net gain will only be 8. Glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate isomerization, biphosphate, break it down into DHAP, G3P, convert into biphosphoglycerate. Can you see these 2 pathways? Because there are 2 molecules, therefore there are 2 pathways. 3 phosphoglycerates, change the 3rd carbon to 2nd carbon of the phosphate, 2 phosphoglycerates, phosphenol pyruvate, and finally pyruvate. From here, link reaction Krebs cycle to be continued in the next amazing class. This is Dr. Vani thanking you. Thank you so much for enjoying today's lecture. I'm going to see you in the next class. Tada bachcho. Take care. Do join our Telegram group and
The Little Wonders channel has been launched. Do see it. Most importantly, this has been converted to 95%. Don't forget to use the code VDMIC. क्या code है? VDMIC. And don't forget to like, share and subscribe to our amazing channel. So on behalf of my entire team, bye bye. Tata for today. Bye bye. Take care.